Hare Krishna. Let's begin our session with prayers. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा। बस एक मिनट मैं चेक कर लूं कि मैंने सबको लिंक भेज दिया है। हरे कृष्णा। सो वेलकम टू योर न्यू लेवल आफ्टर क्लियरिंग योर previous level. You have entered a level called sadhaka, also called aspiring upasaka. Why? Because the next test you will write, exam you will write, is called aspiring, is called upasaka. So we call ourselves as aspiring upasaka also. Actual level is sadhaka, but because of what we are going to do next, it's called aspiring upasaka. Aspiring upasaka is the name we will stick to so that we will have no confusion. So we'll have about 13 sessions. I have sent you the syllabus in your group. I have sent you what is the plan. I have sent you the first two PDFs in advance so that this time, before you attend the class, you will read the particular chapter and then attend the class. And then after today's class, you will again revise it and get prepared for the next PDF, which second PDF also I have posted in advance. So by next week, I'll post PDF of 3 and 4 in advance, so that once you finish reading, you are ahead of it. तो उससे क्या होगा, जब आप क्लास अटेंड करेंगे तो मतलब आप पढ़ के अटेंड करेंगे तो आपको और समझ में आए. So we straight away start with our discussion. If you can open your PDF which sent to you, good. Otherwise, I will anyway project. That should not be a problem for you. So this is how I'll keep the projection on. So today we're going to discuss about the qualifications of a bona fide spiritual master. एक अधिकृत गुरु का क्या qualification होना चाहिए. So we discuss about who is a bona fide spiritual master. How does one identify the bona fide spiritual master? कौन है असली गुरु, कौन है, कैसे हम उसको पहचानेंगे. What is the need for a bona fide spiritual master? क्यों चाहिए एक अधिकृत गुरु? Why do we need such a person? Qualifications of a bona fide spiritual master. तो उनका जो क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशंस है, एसेंशियल क्वालिफिकेशंस जरूर होना चाहिए उनमें ऐसा कौन सा गुण है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. एंड वी विल, because you are in aspiring upasaka level, we will put a note on unauthorized gurus. अनधिकृत गुरु कौन है, कैसे हम उनको पहचानेंगे. हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण. Okay, let's straight away start with the discussion. Who is a bona fide spiritual master? अधिकृत गुरु कौन है? Shastras behoove one to approach a spiritual master. शास्त्र बार बार कहता है कि गुरु के पास जाइए. To gain transcendental knowledge, क्यों जाना चाहिए? तो दिव्य ज्ञान को पाने के लिए. And thus make his life successful. तो उससे क्या होगा, हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा.
बट हाउ डज वन आइडेंटिफाई द राइट पर्सन टू अप्रोच? तो हम कैसे पहचानेंगे अधिकृत गुरु को? द वर्ल्ड टुडे इज फुल ऑफ गुरुस। आजकल के कलयुग में तो गुरु भरे पड़े हुए हैं। तो दे प्रोक्लेम देमसेल्व्स टू बी रियलाइज्ड सोल। सब लोग यही बोलते हैं कि मैं आत्मा साक्षात्कार हो चुका है, मुझे, मैं ही असली गुरु हूँ। एंड प्रॉमिसिंग टू मेक द फॉलोअर्स एडवांस विद लिटिल और नो एंडिवर। और ये प्रमाण देते हैं, वचन देते हैं अपने शिष्यों को कि मेरे साथ रहेंगे तो आपको कम क्या कोशिश से, लिटिल एफर्ट, आप आध्यात्मिक प्रगति कर पाएंगे। एंड ईच वन ऑफ देम propounds a different and seemingly promising philosophy। और हर व्यक्ति, हर गुरु यही हर गुरु सब शिष्यों को यही बोलता है कि मेरे पास कुछ पावर्स हैं, आई हैव गॉट पावर्स एंड आई एम डिफरेंट। So how does one decide amongst who amongst them is bona fide, who is not? तो कैसे हम तय करें कि कौन अधिकृत गुरु है, कौन नहीं है? So the answer to this question must be sought in शास्त्र। तो गुरु, साधु, शास्त्र, ये तीन प्रमाण है। These are the parallel tracks that our spiritual life should go। तो हमारे आध्यात्मिक रेल पटरी का ये तीन ट्रैक्स है, गुरु, साधु, शास्त्र, और तीनों के बल पे हमें जाना है, एक भी कम नहीं होना चाहिए। The scriptures say that a guru or acharya is one who knows the import of all Vedic literatures। गुरु कौन है? ब्रह्मनिष्ठा। तो और जो सारे शास्त्रों को जानता हो, सारे वेद ग्रंथ को जानता हो। तो समित पाणी श्रोत्रियम, उसको बोलते हैं समित पाणी श्रोत्रियम। सारे वेद शास्त्र को वो जानते हैं। Who abides by rules and regulations and teaches his disciples to act in such a way। ब्रह्मनिष्ठा है, वो अपने शिष्यों को जो सिखाते हैं वो खुद पालन करते हैं। So he follows what he preaches। The purpose of spiritual regulations, scriptural regulations and rules is to know Krishna। ये सब हमें क्यों करना है? शास्त्र को, शास्त्र के दिए हुए नियम को पालन करना है, गुरु के आदेश को पालन करना है, साधु के मार्गदर्शन से चलना है। क्यों? क्योंकि हमें कृष्ण को जानना है। So if you have to know Krishna, that is spiritual progress। तो और spiritual progress is possible by Guru, Sadhu and Shastra। So तो कौन है गुरु? 100% कृष्णा कॉन्शियस। सिंपल डेफिनेशन ऑफ बोनाफाइड गुरु, बोनाफाइड आचार्य, वन हु इज 100% कृष्णा कॉन्शियस, 100% कृष्ण भावनामृत में जो स्थित है। तो क्यों चाहिए अधिकृत गुरु? क्यों चाहिए? कोई बोल सकता है आई डोंट नीड ए स्पिरिचुअल मास्टर, मुझे नहीं चाहिए गुरु। आई एम ए ग्रोन अप पर्सन, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूं, मैं अभी जवान हूं, मुझे मुझ में भी बुद्धि है। आई हैव ऑल द पावर एंड नॉलेज, बहुत पढ़ लिख चुका हूं मैं। तो मैं अपना आध्यात्मिक जो पथ है मैं खुद ढूंढ लूंगा। सो ये एक एक्सरसाइज है, आपको बाद में जब आप रिवाइज कर रहे हो ये एक्सरसाइज को आपको करना है। So there are many inexperienced people who advocate self realizations। बहुत सारे गुरु हैं कलयुग में जो आत्म साक्षात्कार के पथ को मैं आपको दिखाऊंगा बोल सकते हैं। और वो ये भी बोल सकते हैं कि इसके लिए गुरु की आवश्यकता नहीं। They decry and the necessity of a spiritual master। Replace themselves by propagating the theory that a spiritual master is not necessary। जरूरत नहीं है गुरु का। The Shastras however do not approve this viewpoint। लेकिन शास्त्र में ऐसा कुछ नहीं दिया है कि गुरु की जरूरत नहीं है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम।
उत्तम जिज्ञासु श्रेय का श्रेयस्कर जिज्ञासा में करना है, तस्मात् गुरु प्रपद्येता, गुरु के पास जाइए, ये शास्त्र प्रमाण देता है। मुंडक उपनिषद में बताया गया है, तद विज्ञानार्थम च गुरुम एवं अभिगच्छेत। तो आपको आध्यात्मिक विज्ञान को जानना है तो आपको गुरु के पास जरूर जाना चाहिए। गच्छेत जाना है, अभिगच्छेत जरूर जाना चाहिए। समित पाणि स्तोत्रियम, तो जो सारे वेद ग्रंथ को जानता है, ब्रह्मनिष्ठा, इज फिक्स्ड इन एब्सोल्यूट ट्रुथ, जो कृष्ण के ऊपर संपूर्ण तरीके से श्रद्धा रखता हूं। सो श्रीमद् भागवतम आल्सो सेज दैट एट एवरी स्टेप ऑफ लाइफ देयर इज परप्लेक्सिटी। तो कलयुग में, जीवन में, हर कदम में, कदम पदम पदम यत विपदाम, तो कोई ना कोई कष्ट, कठिनाई, उपद्रव आता रहता है। एंड देयरफॉर वन मस्ट अप्रोच अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। हमें इस कठिनाइयों से, उलझनों से हमें उत्तर चाहिए तो हमें गुरु के पास जाना चाहिए। So the spiritual master is described in every scripture as a representative of the supreme personality of Godhead. गुरु कौन है? भगवान का प्रतिनिधि है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र है, उक्तस्तथा भाव्यत एवं सद्भी। ये लाइन्स हम गाते हैं, कहाँ कब गाते हैं? हमारे मंगल आरती के गुरु अष्टकम में हम गाते हैं। तो यहाँ माना जाता है कि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं है, गुरु की शिक्षा और भगवान की वाणी में कोई अंतर नहीं है। बिकॉज ही इज मोस्ट कॉन्फिडेंशियल सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, किंतु प्रभु यह प्रिय एव तस्या, भगवान के जो प्रिय अनुयायी है, दास है, वो गुरु है। तो दास गुरु में दास भगवान, तो भगवान है, गुरु भी भगवान है, लेकिन वो दास भगवान है। वो गुरु का मतलब वो भगवान का सेवक है, ये भगवान भगवान का सेवक है। कंसल्टिंग ए बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर मीन्स कंसल्टिंग द स्पिरिचुअल सुप्रीम पर्सन ऑफ गॉडहेड पर्सनली। गुरु का संदर्शन करना है, इसका मतलब है हम कृष्णा का संदर्शन कर रहे हैं। वन शुड देयरफॉर टेक शेल्टर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। इसलिए एक अधिकृत गुरु के पास हमें जाना चाहिए। तो गुरु का गुण क्या होना चाहिए? What are the qualifications of the guru? So one who is looking for a spiritual master must know the standard that the guru must meet. अगर मुझे कुछ चाहिए, मुझे पहले से ही पता होना चाहिए उसमें मुझे क्या क्या ढूंढना है। तो अगर मैं कुछ खरीदने के लिए जाऊंगा तो मुझे पहले ही रिसर्च करना है कि जो मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ उसमें मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा। उसको देखने के बाद, परखने के बाद मुझे उसको खरीदना है। ठीक वैसे ही अगर मुझे गुरु को पहचानना है तो गुरु का लक्षण क्या है ये हमें पता होना चाहिए। तो इसमें आध्यात्मिक विद्या की जरूरत है। तो अगर मुझे पता नहीं है कौन सा गुण मुझे उसमें देखना है तो मैं गुरु को प्रमाणित कर ही नहीं सकता। तो बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर बिलोंग्स टू बोनाफाइड परंपरा। तो पहला गुण क्या है, पहला लक्षण क्या है? वो अधिकृत संप्रदाय से जुड़े हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी 32वें आचार्य हैं, ब्रह्म मध्व गौड़ीय वैष्णव परंपरा के। ब्रह्मा कृष्णा से प्रारंभ होते हुए तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तत्पश्चात भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद, वो एक परंपरा में आते हैं। सो द लॉर्ड इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर। आदि गुरु कौन है? भगवान श्री कृष्ण खुद है। तो चार संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, अधिकृत संप्रदाय, ब्रह्म मध्व गौड़ीय, श्री संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सबका आदि गुरु कौन है? सबका आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण है। तो पहले विद्यार्थी कौन है? ब्रह्मा, लक्ष्मी, कुमार, शिव जी। सो इन द भगवद गीता द लॉर्ड एडवाइजेस अस टू अप्रोच अ स्पिरिचुअल मास्टर। भगवान खुद भगवद गीता में बोल रहे हैं। तो आपको गुरु के पास जाना चाहिए। तद्विधि प्रणिपातेन, और गुरु के पास जाके उसका शरण में जाना चाहिए। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, आप उनसे प्रश्न उत्तर कीजिए।
आपका आध्यात्मिक जो संशय है उस पे समाधान लीजिए, तो सेवया, फिर उस गुरु का सेवा कीजिए। सो क्यों? उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना, क्यों? और ही कैन कन्वे द मैसेज ऑफ द लॉर्ड एज इट इज टू हिज डिसाइपल, क्योंकि वो अपने शिष्य को सारे वेद का ज्ञान को जैसे यथारूप देना है वो दे सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन क्या है? बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑथराइज्ड बाय हिज प्रेडेसेसर, अधिकृत परंपरा। पहला, अधिकृत परंपरा में उनके पूर्व आचार्य उनको नियमित करते हैं, वो बोलते ये हमारे शिष्य जो है मेरे उत्तराधिकारी बनेंगे। So a bona fide spiritual master is not self-made, is authorized by his spiritual master, his predecessor. तो आप बोल सकते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कब बोला भक्ति वेदांत स्वामी को कि आप मेरे मेरे संप्रदाय के अगले गुरु हैं? जिस दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने the day Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur told Prabhupada, why don't you preach in the Western countries in English language? He's empowering him. He's already authorizing him. He is telling him to do it. So this is authorization. The example of a medical practitioner, तो जो वैद्यकीय विद्यालय में उत्तीर्ण होकर आता है, कैसे आता है? He can become an authorized medical practitioner, जो एक अधिकृत विश्वविद्यालय, वैद्यकीय विश्वविद्यालय से पढ़ के अपने प्रोफेसर से पढ़ाई करा के उनसे मार्क्स लेके बाहर जो आता है वो डॉक्टरी कर सकता है बाहर। So one cannot become an authorized medical licensee to practice independently by simply studying textbooks. अब कोई नहीं कह सकता अब तो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट में मिलेगा, जो बुक्स मुझे चाहिए वैद्यकीय विद्याभ्यास के लिए मैं खरीद सकता हूँ, तो मैं खरीदूंगा, घर में पढ़ूंगा और 4 साल के बाद मैं अपना एक क्लिनिक खोल दूंगा। क्लिनिक वो खोल सकता है, कोई उसके पास आने वाला नहीं है। कोई आएगा भी तो ज्यादा दिन चलेगा नहीं, क्योंकि सिंस ही इज स्पूरियस डॉक्टर, क्योंकि अनधिकृत वैद्य है तो उनको क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स में अरेस्ट किया जा सकता है फॉर चीटिंग पीपल। तो तीसरा, बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज वेल वर्स्ड इन ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर्स। समित पाणी श्रोत्रियम, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो अगले पॉइंट पे जाएंगे। बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर इज ऑन द महाभागवता प्लेटफॉर्म, वो शुद्ध भक्त है, not like the so-called gurus we have seen in the current structure of ISKCON. So many sannyasis who occupied the position of guru and who have fallen down. ऐसा कोई उदाहरण है ही नहीं हमारे परंपरा में, कोई भी परंपरा में। यहाँ पे कुछ नया देखने को मिल रहा है, अपने आप गुरु वो डिक्लेयर कर रहे हैं और और कुछ समय के बाद उनका पतन हो जाता है। तो कभी भी आपने देखा है गुरु प्रभुपाद के जीवन में उनका पतन होने का कोई भी विषय आपने सुना है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में ऐसे सुना है? हैव यू हर्ड लाइक दिस अबाउट गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी? यू विल नेवर हियर, बिकॉज गुरु इज वन हु इज ऑलरेडी अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड. Only a pure devotee of the Lord can become Guru, not an experimental Guru, not a showcase Guru, not a Guru who says that I will try, and not some voted Guru, जो जिसको वोट करके गुरु बनाया गया है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है. It has to be, so it has to be on the महाभागवत प्लेटफॉर्म. उत्तमाधिकारी, उत्तम वैष्णव होना चाहिए, वो उसका अधिकारी होना चाहिए, शुद्ध भक्त होना चाहिए उसको. So, the bona fide, next point, bona fide spiritual master never claims to be God. हम उनको बोलेंगे साक्षात हरित्वेणा समस्त शास्त्र, लेकिन गुरु कभी ये नहीं बोलेगा मैं भगवान हूँ, छोड़ो कृष्णा को, मेरे पैर पकड़ो, बस मैं आपको सब कुछ दूंगा. ऐसा कोई भी गुरु नहीं बोलेगा. ऐसे कोई बोल रहा है तो वो गुरु है ही नहीं, वो लंपट है. Well, a spiritual master duly respected on par with God, a spiritual master claiming
to be God himself should at once be rejected. ऐसे गुरु को दूर कर देना चाहिए। तो गुरु कौन है? जो हमेशा बोलते हैं मैं भगवान का दास हूं, मैं आपको भी भगवान का दास बनाऊंगा। है नहीं कि वो बोल रहा है कि मैं भगवान हूं और आपको भी मैं एक दिन भगवान बनाऊं। कितने भगवान होंगे भाई? हाउ मेनी गॉड्स वी विल हैव? देयर इज ओनली वन गॉड, एकले ईश्वर कृष्ण आर सभी भृत्या। यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दिस, देयर इज ओनली वन सुप्रीम गॉड, everybody else is only a servant of that supreme lord. Next point, a bona fide spiritual master is free from material motives. कोई भौतिक दृष्टिकोण है ही नहीं, कोई भौतिक लाभ का सोच है ही नहीं। प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े मंदिर बनाए, कभी भी ऐसा नहीं सोचा आपने इतने बड़े मंदिर में मुझे एक बड़ा सा कमरा में रहना है और आराम से रहना है, सारे सुविधा होना चाहिए। अपने लिए नहीं किया उन्होंने, जो भी उन्होंने किया भगवान की भक्ति का प्रसार के लिए किया। जो भी सुविधा उन्होंने दिया अपने शिष्यों को, वो भी उनके सुशिष्यों के भक्ति को न भंग हो इसलिए दिए। वे खुद एक साधारण मतलब जीवन जी उन्होंने जिए। असाधारण उदाहरण है, असाधारण व्यक्ति है, ब्रह्मनिष्ठा है, समित पाणी श्रोत्रिय में श्रील प्रभुपाद, लेकिन बहुत ही साधारण जीवन उन्होंने जिया। वेरी सिंपल लाइफ he led. So he always taught us simple living, high thinking, and he followed that. ऐसा नहीं कि आपको बोल रहे सिंपल लिविंग और वो इतने भर भर के गहने पहन रहे हैं, मतलब अच्छे सूट पहन रहे हैं, ऐसे नहीं। वो गेरुआ रंग का कुर्ता और गेरुआ रंग का धोती, वैष्णव अटायर में हमेशा रहते थे, हमेशा तिलक होते थे, कंठी माला, हाथ में जपा माला। वैष्णव का वो क्या बोलते हैं, he was the very best example of a pure devotee. And in the service of the Lord, he engages, is free from material motives. तो वो खुद भौतिक विषयों में नहीं पढ़ते और अपने शिष्य को भी वो यही इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि कुछ मॉडर्न गुरु से बोलते खाओ पियो एंजॉय करो, बस थोड़ा सा मैंने जो मंत्र सिखाया है ना उसको दिन में कुछ देर के लिए करो, बाकी दिन में जो चाहे करो। ऐसा कोई गुरु नहीं है, वो लंपट है, ही इज अ चीटर। डिवोटी शुड बी डिवोटेड टू कृष्णा 24 आवर्स, 24 घंटे कृष्णा के ही होना चाहिए और कुछ समय है नहीं। नेक्स्ट, what is the next qualification? Bona fide spiritual master has an attitude of servitude to the Lord. तो ब्रह्मनिष्ठा, श्रद्धा, वो एक दास, एक अपने आप को तुच्छ दास मानते हैं भगवान का। और हमेशा भगवान की सेवा करते रहते हैं और अपने शिष्यों को उस भगवान की सेवा में लगाते हैं। ऐसा नहीं कि आराम से बैठे हैं और दे रहे हो उपदेश, सेवा करो सेवा करो सेवा करो, जपा करो जपा करो जपा करो। हमेशा प्रभुपाद को आप देखेंगे कुछ ना कुछ सेवा करते रहते थे। कोई भी वीडियोस आप देख लीजिए, कीर्तन करते रहते थे, जपा करते रहते थे, प्रवचन देते रहते थे, एक मिनट भी वो कृष्णा से दूर नहीं जाते। सच, and if such a person is not doing it, ऐसे गुरु को हमें दूर कर देना चाहिए। जैसे कि बलि महाराज, बलि महाराज को जब वामन देव आए अवतार लेके, तो उनके गुरु, बलि महाराज के गुरु उनको बोल रहे ये विष्णु है, उनको दान मत देना। तो वो बोल रहे आप कैसे गुरु हो? बोल रहे हो साक्षात भगवान मेरे पास आए और आप बोल रहे भगवान को आप दान मत दो। तो तुरंत शुक्राचार्य को बलि महाराज ने रिजेक्ट कर दिया और वामन देव के पैर को अपने सर पे ले लिया। तो उस तत्पश्चात वामन देव विष्णु उनके दास बन गए। उन्होंने बोला आपका ये जो गुण है इससे आपने मुझे खरीद लिया, आप अभी रसताल में रहेंगे, सुतल में रहेंगे और वहां पे मैं आपके राज्य का द्वारपालक बन के रहूंगा। सो एंड विष्णु
as long as Bali Maharaj was there, he served as the gatekeeper of his particular empire. He was the uh, watchman of that particular empire. So he was sold out for the Shraddha and the character of Bali Maharaj. That's why Bali Maharaj is one of the Maha, what is it? Mahajana Ena se Gatapanta. Mahajana, Mahajana Pantah. तो जो महाजन है उनमें से एक है बलि महाराज. बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर डज नॉट मैन्युफैक्चर हिज ओन वे ऑफ बिहेवियर. ऐसा नहीं कि वो खुद अपना कुछ परिभाषा कर रहा है. वेद शास्त्र में उनके शिष्य, उनके गुरु ने उनको क्या सिखाया वही वो आपको सिखाएंगे. एक परंपरागत जो शिक्षा मिल रहा है वही आपको वो प्रदान करेंगे. बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर टीचर्स बाय एग्जाम्पल. तो अधिकृत गुरु आचार्य कहलाते हैं. आचार्य मतलब जो करके दिखाते हैं, सिर्फ बोलते नहीं है, जो उदाहरण के तौर पे करके भी दिखाएंगे. चैंट हरे कृष्णा ऑलवेज. हमेशा प्रभुपाद जी जपा करते थे. ऑलवेज दो कीर्तन. प्रभुपाद जी अगर जब जपा नहीं कर रहे थे तो कीर्तन कर रहे थे, और कीर्तन नहीं कर रहे तो प्रवचन दे रहे होते. अगर प्रवचन नहीं दे रहे होते तो प्रसादम पा रहे होते या प्रसादम पका रहे होते, या फिर ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं दूसरे शहर के लिए कृष्णा भावनामृत को प्रचार के लिए, प्रचार के लिए. सो is every moment of his life was dedicated in Krishna service, and it was always in a bona fide way. It taught him as an example, Acharya. So और यहाँ पे एक बॉक्स में गुरु ब्राह्मण और वैष्णव दोनों के बारे में बताया गया है. तो आपको ये होमवर्क के तौर पे आपको पढ़ना है. तो आई विल ओनली बी कवरिंग द मेन पॉइंट्स. द एक्सॉल्टेड आचार्य. So Srila Prabhupada ji exhibited all the qualities of a bona fide spiritual master. So we should all be so thankful to Krishna that he brought us to Srila Prabhupada, and we should be thankful to Prabhupada because he will take us back to Krishna. So this is another exercise for you to do. So the fourth aspect what we are going to do today, a note on unauthorized gurus. अनधिकृत गुरु कौन है? तो कौन है अनधिकृत गुरु? कौन है मतलब जो सेल्फ मेड गुरुज हैं. द क्वालिफिकेशंस ऑफ अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर आर क्लियर फ्रॉम व्हाट वी रेड प्रीवियसली. अब तक जो हमने पढ़ा उसमें साफ साफ हमें पता चल रहा है कि एक अधिकृत गुरु कौन है और उसका गुण लक्षण क्या होना चाहिए. एनीवन हु डज नॉट मीट दिस क्वालिटीज कंसिडर्ड बोगस. ढोंगी बाबा. अगर उनमें इसमें एक भी गुण नहीं है, ऐसा नहीं कि कंसेशन 70%, 80%, 100% वो सारे गुण होना चाहिए, उसमें एक भी गुण नहीं है तो वो गुरु नहीं है. और शिक्षार्थ गुरु हो सकता है लेकिन दीक्षार्थ गुरु नहीं हो सकता. आचार्य उसको नहीं कह सकते. अनफॉर्चुनेटली इन एज ऑफ कली देयर इज नो डर्थ ऑफ सच चार्लटन्स. लेकिन कलयुग में ढोंगी बाबाओं का कोई कमी नहीं है, ढोंगी लोगों का कमी नहीं है. जब ढोंगी लोग हैं तो ढोंगी लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ढोंगी बाबा ही चाहिए. तो कृष्णा सारा व्यवस्था कर चुके हैं. माया देवी एक दूसरे में उलझा देती है. ढोंगी बाबा, ढोंगी व्यक्ति, अच्छा एक समागम हो जाता है. तो वी में टास्क बहुत सारे ढोंगी बाबा इनोसेंट पीपल को ठग लेते हैं. उनका क्या होगा? अगर एक बंदा सचमुच इनोसेंट है तो भगवान जो उनके हृदय में परमात्मा बन के बैठे हैं उनका मार्गदर्शन करके उनको उस गुरु से दूर लेके जाते हैं. तो a sincere soul will always be guided by the super soul, and a devotee, even if he has apparently made a wrong choice, Krishna will make sure that he'll bring in such a situation, ऐसा परिस्थिति लेके आएंगे वो उस ढोंगी बाबा से दूर हो जाए और असली गुरु के पास कृष्णा उनको लेके आएंगे. So this epidemic of bogus gurus, swamis, priests, and so forth has been explicitly described in Srimad Bhagavatam. भागवतम में इसके बारे में उल्लेख है, खासतौर पे कलयुग में क्या होने वाला है. It predicts that कलयुग में uncultured men
मतलब कोई अ, संस्कृति है ही नहीं। दे एक्सेप्ट चैरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द लॉर्ड। ऐसे लोग दान दक्षिणा स्वीकार करते हैं। एंड दे अर्न देयर लाइवलीहुड बाय मेकिंग शो ऑफ ऑस्टेरिटी। अपने जीवन का मार्ग क्या है, का साधन क्या है? ढोंग रचाना, ढोंगी भक्ति दिखाना, और उससे पैसे लेना, लपटाना। एंड वेयरिंग मेंडिकेंट्स ड्रेस, बाबा जी का वेश, लेकिन सारा जो काम है एक तुच्छ व्यक्ति का काम करते हैं। Those who know nothing about religion will mount a high seat. जो धर्म के बारे में कुछ भी नहीं जानते वो ऊंचे ऊंचे पद में आ जाते हैं कलयुग में। तो इसलिए वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। बट इफ यू आर डेडिकेटेड टू द लॉर्ड, वी कीप प्रेइंग टू द लॉर्ड, ही विल टेक अस टू द बोनाफाइड आचार्य। एंड दिस बोनाफाइड, हाउ विल यू नो इज बोनाफाइड आचार्य? 100% Krishna conscious, always talking about Krishna, never making you forget Krishna, never talking to anything other than Krishna. ऐसे ही ऐसे अधिकृत गुरु होते हैं। सो नेचर ऑफ पीपल हु एक्सेप्ट अनऑथराइज्ड गुरुस। तो ऐसे ढोंगी बाबा को कैसे लोग पसंद कर सकते हैं? सो व्हाई आर पीपल इंक्लाइन टुवर्ड्स बोगस गुरुस? ऐसे ढोंगी बाबाओं के चक्कर में क्यों पड़ते हैं लोग? क्योंकि वो खुद ढोंगी व्यक्ति है। आई टोल्ड यू व्हाट हैपेंस टू इनोसेंट पर्सन। जो इनोसेंटली जा चुका है, परमात्मा उसको कोई ना कोई मार्ग करके, उसको उपाय करके उसको उससे बाहर लेके आना। तो द आंसर लाइज इन अंडरस्टैंडिंग टू इंपॉर्टेंट थिंग्स अबाउट कंडीशन सोल्स। तो जो ये बद्ध जीवी है उसके बारे में हमें समझना है। दो चीजें क्या है, खासतौर पे कलयुग में मोस्ट पीपल टुडे आर entrapped इन इग्नोरेंस। आवृत है अज्ञान से। एंड हैव नो क्लू आइदर अबाउट रियल एम ऑफ लाइफ। उनको पता नहीं है जीवन का उद्देश्य, लक्ष्य क्या होना चाहिए मनुष्य जीवन का। और द क्वालिफिकेशन ऑफ गुरु, गुरु का जो लक्षण क्या होना चाहिए उनको पता नहीं है, क्योंकि अज्ञानी है। एंड द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टू द मोस्ट पीपल डू नॉट वांट टू ट्रेड द पाथ ऑफ सेल्फलेस। दूसरा, उनको आध्यात्मिक पथ पे जाना ही नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक पथ में अरे ये यू हैव टू गिव अप दिस, यू हैव टू गिव अप दैट। हम ये सब नहीं छोड़ सकते। आप बोल रहे मदिरा छोड़ दो, मांसाहार छोड़ दो, जुआ खेलना छोड़ दो, सिगरेट पीना छोड़ दो, चाय पीना छोड़ दो, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम इनके पास जाएंगे, इस डोंगी बाबा के पास जाएंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे बाबा हैं। कभी उन्होंने नहीं बोला हमको कि आप चाय मत पियो, मांस मत खाओ। वो बोलते जो करना है करो, मैं आपको भस्म दूंगा, बस आप वो सेवन कीजिए, आप भगवान बन जाएंगे। भगवान नहीं बनेंगे, उस भस्म की तरह एक दिन वो भी भस्मीभूत बन जाएंगे। दे विल एंड देयर लाइफ बिकमिंग एश एंड कम बैक इनटू दिस मटेरियल लाइफ। सो बीइंग इन द मोड्स ऑफ इग्नोरेंस एंड पैशन, कलयुग में खास तौर पे सारे लोग रजोगुण और तमोगुण में है। देयर सोल एम इज टू बी ऑलवेज एंगेज इन अनरचिड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि उनको चाहिए, वो चाहते हैं कि वो जो भी लंपट कार्य कर रहे हैं वो करना चाहते हैं, तो इसलिए वो लंपट गुरु के पीछे ही भागते हैं। तो बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, और उस बर्ड्स के वो जो बर्ड्स के जो ग्रुप में एक लीडर होगा वो भी वही बर्ड होगा। तो ठीक वैसे ही ये जो कौवे हैं वो जाके एक बड़े कौवे के साथ जुड़ जाते हैं जो अपने आप को कोयल बोलता है। तो वो ठग जाते हैं, naturally attracted to someone who allures them into mundane compromising offers and fulfill demands of their senses। अपने इंद्रिय सुख को वो प्रचोदित करते हैं, खुद प्रचोदित करते हैं, और गुरु भी बोल रहा है करो करो, कोई बात नहीं है। तो दे आर यूजलेस लीडर्स, लंपट गुरु, ढोंगी बाबा। और इन इन जैसे गुरुओं से कोई भी लाभ नहीं। दूसरा, फेट ऑफ पीपल हु एक्सेप्ट अनऑथराइज्ड गुरुस, मैंने ऑलरेडी बोल दिया। क्या होगा अगर ढोंगी व्यक्ति ढोंगी बाबा के पास जाएगा? दोनों साथ में डूबेंगे। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधा व्यक्ति को रास्ता दिखाने जैसे हो गया, वो खुद गड्ढे में गिरेगा और उसके साथ अपने शिष्यों को भी उसी गड्ढे में लेके जाके गिराएगा। सो ये जो फॉलोअर्स हैं उनका क्या बोलते हैं,
this becomes the दुर्गति of them. खुद गुरु डोंगी बाबा दुर्गति में जाने वाला है, सब लोगों को भी साथ में लेके जाए। लेकिन जेन्युइन सीकर, एक शुद्ध एक एक अच्छा व्यक्ति, वो भगवान को ढूंढ रहा है, और जैसे जैसे इस ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आ गए डोंगी बाबा के, तब क्या होगा? तो आंसर, द सुपर सोल इज सीटेड इन एवरीवन्स हार्ट। भगवान हरेक के हृदय में बैठे हैं, तो उनको मार्गदर्शन करेंगे, एक सिंसियर सोल को मार्गदर्शन करेंगे, और उसको उससे छुड़ा के एक असली अधिकृत गुरु के पास लेके जाएंगे। ये परमात्मा ये फैसिलिटी कर देते, by which he can fulfill all his spiritual endeavors। ऐसे गुरु के समक्ष में आके ये व्यक्ति अपना आध्यात्मिक प्रगति आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे बहुत सारे एक्सरसाइजेस हैं, आपको अभी इस हफ्ते आपको ये सब रिवाइज करना है, ये चैप्टर, और तत्पश्चात आपको नोट्स भी बनाना है। अब तक तो बना चुके होंगे आप। फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, आप इसका एक्सरसाइज कीजिए। फिर आपको आगे वाला जो पीडीएफ है सेकंड चैप्टर का, वो तो मैंने ऑलरेडी भेज दिया है, तो फिर आप उसका अध्ययन कीजिए, और अगले हफ्ते नेक्स्ट बृहस्पतिवार आप रेडी हो जाइए फॉर योर सेकंड सेशन। So, if you have got any, so thank you very much for joining me. Just stay on. श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय।